नायाब अपने तरह का पहला राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां देखने को मिलेगी भारत की सर्वश्रेष्ठ विरासत वाली कलाकारी। मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में अपना सफल प्रदर्शन कर चुकने के बाद नायाब के द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी का समापन सत्र मुंबई के होटल ताज पैलेस, कोलाबा में 13 और 14 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में जो 100 से भी ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं, उन्हें देश भर के उन जाने माने कलाकारों ने तैयार किया है जिनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, शिल्प गुरु जैसे तमाम बड़े पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के गवर्नर श्री C.P. राधाकृष्णन ने किया। नायाब की संस्थापक और मुख्य संरक्षक आकांक्षा दीक्षित, निशा जामावल, सीमा सिंह और नायाब के संस्थापक निदेशक अजय सिंह ने समर्थन दिया। मुंबई की इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान संवाद, बातचीत और संगीत के कार्यक्रम होंगे जिसमें दुर्लभ कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ख्यातिनाम कलाकारों द्वारा तैयार की गई इन कलाकृतियों को देश भर के 70 से भी ज्यादा स्थानों के कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। इन कलाकृतियों की कीमत लाख रुपए से लेकर कुछ करोड़ रुपयों तक रहेगी। नायाब की संस्थापक और मुख्य संरक्षक आकांक्षा दीक्षित ने कहा, भारत की उत्कृष्ट और समय सापेक्ष कलाएं अपने में अनूठी हैं जो पुरातन काल से चली आ रही हैं। इन परंपरागत कलाओं में सदियों पुराने कौशल्य, रचनात्मकता और सांस्कृतिक की कथाएं छिपी हैं जो इनको कला की विरासत की अमूल्य धरोहर बना देती हैं। नायाब के माध्यम से हम न सिर्फ इन कलाकृतियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं बल्कि उनकी कालातीत खूबसूरती और उनके महत्व का उत्सव भी मनाते हैं। हम इन कलाकृतियों को विश्व पटल पर सामने लाते हुए उनको उचित सम्मान दिलाते हैं और साथ ही उनकी जबरदस्त विरासत को पीढ़ियों तक सुरक्षित भी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नायाब के संस्थापक निदेशक अजय सिंह का कहना है, भारत की तमाम कलाएं जिनकी जड़ें इतिहास के गर्त में छिपी हैं, जिन्हें सदियों की तपस्या से जीवित रखा गया है, उनको अब नए क्षितिज की जरूरत है। Namaste, good evening to all of you, ladies and gentlemen. It's a great honor to have our Honorable Governor for this very unique exhibition. We had the Minister, Union Minister for Culture at Delhi for inauguration, and you can't have a better chief guest to launch this in the financial capital of India, Mumbai, and in the most prestigious hotel with which I have been associated also for decades. Ajay has spoken something about the exhibits, and I've been admiring his passion. He has been working last so many years going in identifying the great artisans, all award winners, Padma Vibhushan, Padma Shri, and all that. Well, but the work they have done, as you will see later on, is amazing. So India is so proud of its heritage, and more than ever before, our tradition and culture, grandeur is being known all over the world thanks to our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, who made India popular, made yoga popular all over the world, accepted, practiced everywhere in their yoga, and then so many things being done. About our chief guest today, I have the privilege of knowing him for decades together, and a man of great dignity, culture and simplicity. He has been member of parliament twice from Coimbatore, my native place, and he has promoted many agriculture, and so many related agriculture activities, and also the textile industry in Tirupur. We export almost 40,000 crores, 40,000 crores per year, the textile town. Yes, that is near Coimbatore. He trades from that place, and he has been addressed the General Assembly of the United Nations. He has held very high positions. He has been the Parliamentary Committee on Finance and many things. And he has visited every village in Tamil Nadu. And Bombay, we were just discussing as he was coming. I was remembering, we had an illustrious governor, well, all the governors are important illustrious, but as you know, Bharat Ratna C. Subramaniam was the governor of Maharashtra, and from the same place, Coimbatore. And now the present governor also is hailing from the Konkanadu, we call it. Earlier he was reminding me about Dr. Subbarayan also, one of the earlier Dr. P. Subbarayan. And so a close relationship between
Bombay and Tamil Nadu. And you will see the next, just now you have begun this regime, you will be encouraging all good activities, cultural activities, bring spirituality, which is very important now. Spirituality is important. In fact, among the many things I am doing it, environmental protection, spirituality, because the way we are going, the global warming and addictions, while more prosperity, material prosperity, convenience or comforts are there, you can't say people are having the same level of peace of mind and harmony, even within the home also. So for that, spirituality is very, very important, and there will be all spiritual activities will get a big boost under our President Governor. Sir, we are grateful to you. At short notice you have come, and I was very particular, this being so important, we should have your presence, and you are so busy settling down in Bombay, Maharashtra. We are very grateful to your presence here. And when we I will just like to felicitate sir. Can I call a bouquet and a gift to the president? of course, we are heartily come, please come. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. We are today celebrating the first edition of Nayab, organized by the Craft Maestros at Taj Mahal Palace, Mumbai. On this day, I don't know what to say. Such officers is needed if any country want to restore its self-respect. Our own Prime Minister, for taking the decision as the Prime Minister of this country, get killed on our own soil by a foreign terrorist group. There is no clue how to find it out without any fear. He involved himself and he restored the self-respect of India, the self-respect of Tamils, because the great Rajiv Gandhi ji was killed by a Tamil terrorist group. So we all felt very sad. The real Tamil self-respect has been restored by none other than Dr. D.R. Karthikeyan ji, former Director General of CBI, and Sri Ajay Singh ji, Founder Director, Craft Maestros and Nayab, distinguished guests, artists and art lovers, my dear brothers and sisters. As I said, it is immense joy and great honor that I stand before you today in the evening in the inaugural edition of Nayab, organized by the Craft Maestros in the association with FICCI. And this evening is not merely a celebration, but a profound acknowledgement of India's rich and diverse heritage in arts and crafts. First and foremost, I extend my heartiest congratulations to Sri Ajay Singh ji, Founder Director of Craft Maestros and Nayab, and the Chairperson of the FICCI, YFLO Dr. Payal Konadia, for putting together this magnificent event. Your dedication to bring the best of our heritage, arts and crafts to the forefront deserves our highest appreciation. We are gathered here to witness the masterpieces that embody the essence of Indian artistic brilliance. From the intricate patterns of tribal embroidery to the stunning craftsmanship of our village artisans, each piece displayed is a testament to the boundless creativity and skill that our artists possess. Art in India have evolved in the most unexpected and the enchanting places, our villages, tribal communities and traditional workshops. These are not mere artifacts but living legacies that connect us to our past and inspire our future.
India is undoubtedly the cultural capital of the world, which in both tangible and intangible art forms. The beauty of our heritage arts lies not just in their artistic appeal, but in their stories, traditions, and the tireless hands that crafts them. It is imperative that we document, promote, and celebrate these arts to ensure their survival and prosperity. Our Prime Minister has rightly brought global recognition to yoga, a vital aspect of our intangible heritage. Similarly, it is our collective responsibility to bring our art and artists to the world stage. The vision of Viksit Bharat, a developed India, will only be complete when we revive and restore our arts, ensuring that they continue to thrive and inspire future generations. Nayab is not just an exhibition, it is a movement, a crucial initiative that showcases the finest of our heritage, arts and crafts. This initiative, in collaboration with the FICCI and YFLO, reflects a deep commitment to preserving our cultural treasures while promoting them on a global scale. In closing, I wish Nayab and FICCI YFLO tremendous success. May this exhibition serve as the beacon of hope and a platform for our artists to shine. Let us all embrace the spirit of this celebration and continue to champion our heritage with the pride and passion it is so richly deserves. More than ever, Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you everybody. नायाब की हमेशा से कोशिश रही है कि इन कलाओं को लोगों के समक्ष लाया जाए, जहां अच्छे कलाकारों को अपनी कला का उत्तम भविष्य दिखाई दे और कलाप्रेमी भी खूबसूरत, असली और समयातीत कलाकृति का आनंद ले सके, जैसा कि नायाब है। This is same artist, his Shilpguru Award winning pieces. These were 3 of his entries, and on these 3 he got the Shilpguru Award. Very, very unique from Orissa. This is silk thread. Silk yarn has been used to create and wrap this. See, this is all. It's not so, it looks like. But look at the intricacy, how the bells are hanging. I'll take you through. हमारी दोस्त निशा जम्बाल ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और माननीय राज्यपाल जी भी आज यहाँ पे आए
और जैसा उन्होंने कहा कि ये एक एग्जीबिशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये एक सेलिब्रेशन है इंडियन ग्लोरी का। आज जितने सारे आर्टिस्ट का यहाँ पे अंडर वन रूफ इतने सारे ऑल ओवर इंडिया के पेंटिंग्स लगे हैं, आर्ट लगे हैं, और इन सब को हम लोग को सपोर्ट नहीं, ये हम लोगों के लिए ट्रेजर है, ये हम लोगों के लिए आने वाले धरोहर के लिए हम लोग ये बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारे इतने अच्छे आर्ट और कला है हमारे भारत में, ये अतुलनीय है और बहुमूल्य है, और इसको सेव करके रखना चाहिए और आने वाले कई जनरेशन को देना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी दोस्त निशा जाम्बाल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन रखा है, और हमें अपनी इस आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। ये मैंने शो किया है नायाब के साथ। मैं बहुत सालों से क्राफ्ट क्रूसेडर रह चुकी हूँ। मैंने 3 किताब लिखे हैं क्राफ्ट को बचाने के बारे में। मैं समझती हूँ इंडिया का जो असली रिचेस है वो हमारे क्राफ्ट्स में है। हम पहले भी प्राचीन समय से हम जाने माने हैं हमारे क्राफ्ट्स के लिए। I also feel that while we do celebrate contemporary Indian art, we must give impetus and importance to our Indian culture, our Indian crafts, or we will lose them. AI के ज़माने में और सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटिंग के ज़माने में 3D प्रिंटिंग हो रहा है, और हमारे क्राफ्ट्स में जो सालों लगते हैं उसके लिए पेशेंस और जो कला की ज़रूरत है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो अगर हम सब मिल के आज सीमा ने आते ही 5 चीज़ें ले लिए। उनका पैट्रनेज है क्राफ्ट के लिए, मेरा भी पैट्रनेज रह चुका है। बहुत से सहेलियाँ कहती हैं मेरे घर म्यूज़ियम है। तो हम सबको मिल के जितना भी हम आदर और सम्मान देते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट को, उससे कुछ ज़्यादा हमें अपने कला और हमारे संस्कृति को देना चाहिए। नमस्ते और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। देखिए, जो भी आर्ट लवर हैं उनके लिए ये एक डिलाइटफुल इवनिंग बोल सकते हैं ना, उनके लिए ट्रीट है। जैसे खाना खाने वाले को अच्छे खाना है, तो जो आर्ट लवर है उनके लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने आयोजन किया है। और यहाँ पे इतने सारे आर्ट्स हैं, आप हर एक पीस को आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ अलग ही उसमें एक आर्ट है। और मैंने 3 चीज़ें यहाँ से ली है जो बहुत ही डिफरेंट है। और तंजौर का पेंटिंग जो हमारे भारतीय संस्कृति साउथ इंडिया का, ये बहुत ही गोल्ड लीफ से उसमें पेंटिंग किया जाता है, और जो डिटेलिंग है उसमें, और उस पेंटिंग के अंदर मीनाक्षी शादी को दर्शाया गया है उसमें। तो बहुत शुभ होता है इस तरह की पेंटिंग रखना घर में, तो मैंने ये सोचकर उसको रखा है। और बाकी 2 भी पेंटिंग मैंने जो बाई किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग्स और आर्ट वर्क है, 3D इफ़ेक्ट्स है। सो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, और मुझे लगता है कि इस तरह के पेंटिंग जो इन्होंने प्रोग्राम आज रखा और भी होने चाहिए, ताकि हम लोगों को बहुत ही डिफरेंट और बहुत जो इजीली अवेलेबल नहीं है इस तरह के आर्ट, वो आर्ट हम जिसे लोगों को देखने नेशनल मिलते हैं। ट्रेजर कहा जाएगा। एग्जैक्टली। जी, आज मैं अपने मित्र इनके लिए आया हूँ यहाँ पे, निशा जी के लिए। मुझे पता है कि इनको कला का बहुत शौक़ है। इनका घर भी मैंने देखा है, जैसे उन्होंने कहा म्यूज़ियम तो नहीं है, पर वो बहुत ही इट्स अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट। थैंक यू। एंड शी हैज़ गॉट दैट आई ऑफ कलेक्टिंग द राइट थिंग। मैं भी एक आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट इन सम वे अदर देन बीइंग अ डॉक्टर। मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ और मैं अभी आर्ट को जो है बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी संस्कृति जो है उसे हमको बढ़ानी चाहिए। और निशा जी जो हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि हमारी जो देश की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो कला मैंने देखी है बहुत ही अच्छी है, आर्टिस्ट जो है बहुत अच्छे हैं। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली से इज़ दैट इज़ वेरी वेल प्राइस्ड, क्योंकि मैं आर्ट कलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिन दामों में ये बिक रहा है वो बहुत ही सस्ते दाम है। और हर एक जो पेंटिंग है वो एक कलेक्टर्स आइटम है। अगर आप इसे आज ख़रीदेंगे तो 5 साल के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। And more than that, you are actually benefiting Indian artists and Indian art. So it's very important that we start doing this. I hope many more people will come tomorrow to buy more art and to appreciate it. But it's a collector's item. It's a paradise for art. It's wonderful to be here. Thank you very much. Thank you for organizing this. थैंक यू। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, और बहुत ही सुंदर और सुशील। मैं तो यहाँ हूँ बिकॉज आई नो दैट निशा's टेस्ट इज़ इम्पेकेबल। अगर वो कुछ भी करे तो बहुत
क्लास से, बहुत आई से, डिटेल से करते हैं. एंड मैं वही उम्मीद से आई थी. एंड आई मस्ट से दिस एग्जीबिशन हैज सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस. बहुत ही अच्छा लगा और बहुत गर्व की बात है कि हमारे आर्ट्स, हमारे क्राफ्ट्स को, रूरल रीजनल क्राफ्ट्स को अलाइव रख रहे हैं थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस. टैंजौर है, पट्टचित्र है, गोंड है. सो मैं हमेशा सोचती हूँ अगर हम उतनी ही कीमत आर्ट्स और आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन को दे जितने हम पत्थर को दें, उतनी ही मूल्य दे, तो द वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस, यू नो, बिकॉज आर्ट के ऊपर सो बिकॉज आर्ट के ऊपर कोई भक्ति हो नहीं सकती, वेदर इन एनी आर्ट फॉर्म. सो दैट इज़ माई व्यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड मे दिस गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. थैंक यू. ये हमारे लिए ज़िंदगी का एक मिशन है कि हम जो देश की धरोहर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उसकी रिचनेस है, जिसको लेके हम इतना प्राउड फील करते हैं कि हमारा देश कमाल है, ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं आसपास, ये उसकी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है. ये हमारे देश के जो हाईएस्ट अवार्ड विनिंग आर्टिजन्स हैं, जो पद्म विभूषण, पद्म श्री, नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिजन्स हैं, ये उनके बेस्ट आर्ट वर्क्स हैं. ये भारत देश में पहली बार हुआ है ऐसा कि हमारे देश का जो कल्चरल धरोहर की इस टाइप की एग्जिबिट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एक सिंगल रूफ के नीचे हुई है. जब श्री राधा कृष्णन जी को भी पता चला, उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसको एक्सेप्ट किया. इवन दिल्ली में भी जब हमने किया था तो जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इवन वो खुद चार्टर प्लेन करके आए, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं इसको मिस नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये हमारे देश की संस्कृति की जड़ है. और हमें ये प्रोत्साहन चाहिए गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी, लोगों से, कलेक्टर से, बिजनेसमैन से, कि वो इसको बढ़ावा दें, हमारे संस्कृति को आगे लेके जाने में हेल्प करें, उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स को इंस्पायर करें कि वो और खूबसूरत काम क्रिएट करें और हमारे देश के नाम को आगे लेके जाएं. हम शुरुआत करें इंडिया से, दिल्ली, हैदराबाद और ये मुंबई जो फर्स्ट एडिशन है, और अगले साल हम इसको देश के बाहर लेके जाएंगे. पूरे भारत के नाम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है, कुल कितने आर्टिस्टों का यहाँ पे लगा हुआ है, क्या कुछ इसकी नुमाइंदगी है, और सर जो राज्यपाल सर आए उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर? जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग 70 से ज़्यादा मास्टर आर्टिजन्स के 100 से ज़्यादा मास्टरपीसेस को हमने एग्जिबिट किया है यहाँ पे. ये अक्रॉस द कंट्री लगभग 17 स्टेट से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की एक नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पे एक छत के नीचे ताज में. राज्यपाल जी तो जैसे आप सुन भी रहे थे और अभी वापस जाते भी बोल रहे थे, वो बहुत खुश थे देख के कि हमारे जो कलाकारों की सोच है, वो बात कर रहे थे कि इवन जो कलर्स वो यूज़ करते हैं वो इतने परफेक्ट बैलेंस्ड हैं. ये सारी चीज़ जो हमारे देश में ही चीज़ें मिलती हैं, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, हम सिर्फ एक कैनवस के ऊपर लिमिटेड नहीं है. हमारी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनकी विविधता इतनी ज़्यादा फैली हुई है और उसकी डायमेंशंस इतनी ज़्यादा है. मेरा ख्याल हम जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना अपने आप को सम्मोहित करते जाएंगे. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है. हाँ जी. जूट से बने गणेश भगवान की मूर्ति, हाँ जी, जो सिल्क की. जो, हाँ जी, जो हमने हाँ देखी है. फिर चतुर्मुखा ब्रह्मा है, हाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल. है. हाँ जी, फिर लकड़ी से. बाद में वो श्रृंगार करती नारी, शायद वो रानी होती. ये जो अलग अलग वेरिएशन में किया है, हाँ जी. ये जो कलाकार है, ये कलाकार जिस तरह से इस मंच में आए हैं, उसी तरह जो उभरते कलाकार हैं उनके लिए कोई नया मंच स्थापित करने की आपकी कोई मंशा है, योजना है? देखिए, हम दो तरीके से कलाकार जो हमारे देश के उनको देखते हैं. एक है मॉडर्न आर्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स हैं. मेरे ख्याल उसमें पहले ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. हमारा जो फोकस है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे आपने ये जो एग्जांपल्स लिए हैं, अभी ये चीज़ जो है कि सिल्क से गणपति की जो पूरी प्रतिमा बनी है, धागे से, ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं. तो हमारी जो पूरी कोशिश है अभी तो ये है कि हम इन आर्टिजन्स का नाम बनाएं. इनके भी जब हम बात करते हैं, इनके भी कहीं नाम नहीं है. ज़्यादातर आप सभी ने जो कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स वाले हैं, आपने HS रज़ा का नाम सुना होगा, MF हुसैन का, राजा रवि वर्मा का, अमृता शेरगिल का, पर इनके नाम लोकप्रियता में नहीं है.
तो हमने क्या किया है, वैसे जब आप पूछ रहे हैं, अगर आप घूमेंगे तो देखेंगे कि हमने इनके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया, इनके वीडियोस क्रिएट किए, हम इनके घरों में गए, पूरी टीम लेके, जैसे आप हैं वीडियोग्राफर्स लेके हमने उनकी स्टोरीज बनाई। तो QR कोड्स में आप उनका रहन सहन, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी लीगेसीज क्या है, वो कितने परिवारों से, कुछ लोग हैं जो कई सेंचुरीज से लगे हुए हैं इस काम में। हमारा पूरी जो कोशिश है, जो पैशन है, वो यही है कि हम इस देश के जो ट्रेडिशनल आर्टिज़न हैं उनको इतना प्रोत्साहन दें, उनके तक पैसा पहुँचे, ताकि कि वो खुद और उनकी आने वाली जनरेशन, आगे वाली पीढ़ियाँ इसमें खुश होके काम कर सकें। बिकॉज अगर कोई इतने साल लगा के, जैसे अभी जब आप पूछ रहे थे ना कि गवर्नर साहब बाहर बात कर रहे थे, वो जो एक चेस्ट पड़ी है बाहर, आर्टिस्ट को बनाने के लिए उसको 10 साल लगे हैं। तो अभी आप समझिए कि किसी इंसान ने अपने 10 साल दे दिए, वो भी हाईएस्ट आर्टिस्ट फॉर्म है, और वो भी ऐसी आर्ट फॉर्म है जो लुप्त हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम ताज में लेके आएँ, हम लोगों को जो टॉप के आर्ट लवर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको दिखाएं, ताकि जो कि आर्टिज़न तक भी उस चीज़ का पैसा पहुंचे। इकोनॉमिक्स हैव टू मेक सेंस फॉर द आर्टिजन्स, ये हमारी कोशिश है। थैंक यू सर।